Hello friends, welcome to Suresh Agarwal's Reasoning Mantra. And guys, today we will start with our third part of distance and direction chapter. And guys, this part is very much important as today we are going to be start with our questions that are based on angles. Guys, as in the previous video, from in first video, in second video, I have always told you that the angle between north, east, east, south, south, west and west north is always 90 degree. That is the angle between all four them, between all of them is 90 degree. That is north to east 90 degree, east to south 90 degree, south to west 90 degree and west to north is 90 degree. And the angle between north to northeast 45 degree, northeast to east 45 degree, east to southeast 45 degree, southeast to south 45 degree and so on. Guys, and the angle between west to east, this angle is 180 degree. South to north is 180 degree. East to west is 180 degree and north to south is 180 degree. So guys, if somebody asks you what is the angle 135 in this, so you will say that if this angle is 90 degree plus 45, this is 135 degree, or this is 135, or this is 135 degree. So guys, now let me tell you that which direction is clockwise and which direction is anti-clockwise. Guys, this direction north, east, south means this direction is clockwise. North to east, east to south, south to west and west to again north. This direction is anti-clockwise direction. This direction is this direction is clockwise direction. Clockwise direction is north to east, east to south, south to west, west to north. This direction is clockwise direction. That is given north to east, east to south, south to west, clockwise direction. Then is anti-clockwise direction is from north to west, west to south, south to east and east to north. It is anti-clockwise direction. This arrow, they represent anti-clockwise. Anti-clockwise. So guys, north to east, east to south, south to west is clockwise direction. North to west, west to south, south to east is anti-clockwise direction. Further guys, और अच्छे से समझने के लिए we will going to start with our questions. So our first question is, guys, I'll tell you two methods. सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करेंगे in order to ताकि आपको अच्छे से एंगल्स और डायरेक्शन समझ में आ जाए, एंड देन हम एक शॉर्टकट ट्रिक करेंगे. So guys, our first question is, a girl is facing south. She turns 135 degree in anti-clockwise direction and then 180 degree in clockwise direction. Which direction is she facing now? So guys, we will draw our directions because first we will going to be do with our basic method. As you all know that this direction is north, opposite to north is south, this is east and opposite to east is west direction. Now what they are saying that a girl is facing south. हमारी direction this is always considered as a fixed point or the starting point. So a girl is standing over here and she is facing in south direction. She turns 135 degree in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction is north to west, west to south, south to east and east to north. So she was 135 degree in anti-clockwise direction. यहाँ से अब वो 135 degree anti-clockwise direction में जा रही है. This is your 90 degrees and this is your 45 degree. तो वो हमारे पास टोटल कितना गई है इस डायरेक्शन में, दैट इज़ 135 डिग्रीज. उसके बाद उन्होंने बोला है एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू इट. दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज एंड कितना गई है 180 डिग्रीज. अब उन्होंने पूछा है विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ. सो शी इज़ फेसिंग दिस. सो विच इज़ दिस डायरेक्शन, साउथ वेस्ट. सो आवर आंसर इज साउथ वेस्ट. गाइज, हमने सबसे पहले क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि एक गर्ल है, शी इज़ फेसिंग साउथ.
वो साउथ फेस कर रही है. शी टर्न्स 135 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो गई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ से कौन सी होगी? इट विल बी साउथ टू ईस्ट, ईस्ट टू नॉर्थ. तो वो गई है 135 डिग्री. 135 डिग्री इज़ 90 + 45 डिग्री, दैट इज़ 90 + 45 डिग्री इज़ 135 डिग्री. फिर 135 डिग्री यहाँ आने के बाद यहाँ पे शी रीच्ड. यहाँ आने के बाद शी अगेन वेंट 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, एंड 180 डिग्री इट विल बी अपोजिट टू विच इज़ शी स्टैंडिंग नाउ. तो दिस फुल विल बी 180 डिग्री. सो अब वो कहाँ पे रीच कर गई है? ईस्ट डायरेक्शन में, एंड दिस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट. नाउ गाइज आई विल टेल यू वन शॉर्टकट ट्रिक. गाइज आपको सबसे पहले ये कुछ नहीं देखना कि किस डायरेक्शन से द गर्ल और द बॉय और द मैन और अ पर्सन इज स्टार्टिंग. हम सबसे पहले लिखेंगे क्लॉकवाइज, और यहाँ पे एक लाइन लगा के लिखेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज. सो गाइज हमें पहले ये लिख लेना है कि क्लॉकवाइज में कितने डिग्रीज गई है, एंटी क्लॉकवाइज में कितने डिग्रीज गई है. लाइक अ गर्ल इज फेसिंग साउथ, शी टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज गई है 135 डिग्री, हमने एंटी क्लॉकवाइज में लिख लिया. देन शी गोज 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, हमने लिख लिया. अब गाइस आपको देखना है कि विच एंगल इज़ मोर, 180 डिग्री ज़्यादा है या 135 डिग्री. 180 ज़्यादा है. हम क्या करेंगे, 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 5 एंड 4. तो हमारे पास आ गया 45 डिग्री. नाउ गाइस 45 डिग्री वो एंगल होगा जो ज़्यादा था. ज़्यादा कौन सा एंगल था? क्लॉकवाइज. तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज. अब हम एक बार दोबारा से बनाते हैं. अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया आपका 45 डिग्री चलना है क्लॉक वाइज, नॉट एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज. अब आपको पता है कि गर्ल शी स्टैंडिंग इन साउथ डायरेक्शन एंड शी हैव टू गो 45 डिग्री इन क्लॉक वाइज. तो क्लॉक वाइज हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली. तो गर्ल कहाँ चली गई? 45 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन. दिस इज़ योर वेस्ट, दिस इज़ योर साउथ. सो आपका आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट. I hope you understand this method, both the methods. This is your first method and this is your second method. You will understand more. Let's do one more example. Question number 2. A man is facing west. He turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? सबसे पहले हम इसको फिर से basic method से करेंगे. Making our again those 4 directions: north opposite to north, south east, and opposite to east is west direction. अब उन्होंने बोला है कि there is a man who is facing west. west direction ये है, so he is facing west. He turns 45 degree in the clockwise direction. clockwise direction हमारी कौन सी होती है? north से east, east से south, south to west, and west to north. वो कितना गया है? 45 degree in the clockwise डायरेक्शन. दिस इज़ योर 45 डिग्री और वो अब यहाँ पे आ चुका है फिक्स पॉइंट पे. नेक्स्ट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन. फिर से वो 180 डिग्री एक ही डायरेक्शन में गया है, तो अपोजिट होगा इसका 180 डिग्री. नाउ द पर्सन इज इन दिस डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब वो 270 गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. गाइस दिस इज योर 180 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, बिकॉज 180 + 90 इज 270 डिग्रीज. सो ये गया हमारा 180, फर्दर 45 डिग्री एंड फर्दर 45 डिग्री. तो ये हमारे पास रीच कर गया यहाँ पे. हमारा आंसर फिर से क्या हो गया है? साउथ वेस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज. उन्होंने हमें क्या बोला था कि एक मैन था, वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा था. वो कितना चला? 45 डिग्री चला वो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है, तो दिस इज़ योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चला गया. उसके बाद सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 180 डिग्री गया है. दिस इज़ योर, यहाँ पे अभी पर्सन स्टैंडिंग है, इसका अपोजिट कितना होगा? 180 डिग्री. अब यहाँ पे रीच करने के बाद वो 270 डिग्री गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. 180, 45 एंड 45. दिस इज़ योर 270 डिग्री. तो अब वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, सो ही इज़ फेसिंग साउथ वेस्ट इज़ आर आंसर. नाउ डूइंग आर शॉर्ट ट्रिक. क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री in the clockwise, again 180 degree in the same direction.
एंड 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब दो एंगल क्लॉकवाइज में है, एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज में है। जो दोनों एंगल क्लॉकवाइज में है उन्हें कर देंगे हम ऐड। 8 and 4 is 12, 1 and 2, 225 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर अब हम फिर से देखें तो इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है? 270 डिग्री। 270 डिग्री में से 225 डिग्री हमने कर दिया कैंसिल आउट, हमारे पास बच गया 45 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री इन विच डायरेक्शन? जो एंगल बढ़ा उसी ही डायरेक्शन में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम फिर से बनाएं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हमारे पास जो पर्सन था ही वॉज फेसिंग वेस्ट, तो ही इज़ फेसिंग वेस्ट। लेकिन अब हमारे पास क्या बच गया? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो पर्सन मेरे पास आ गया इस डायरेक्शन में 45 डिग्री चलने के बाद। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। लेट्स कम नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। Anita moved a distance of 75 meter towards the north. She then turned to the left and walking for about 25 meter. Turned left again and walked 80 meter. Finally, she turned to the right at an angle of 45 degree. In which direction was she moving finally? Guys, एग्जाम्स में सिर्फ आपके पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एंगल से ही ओनली कि क्वेश्चन में सिर्फ एंगल गिवन होंगे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंगल भी सिर्फ गिवन हो सकते हैं, उसके अंदर एंगल और डिस्टेंस भी गिवन हो सकता है। सो हम दोबारा से बेसिक मेथड करेंगे। सो हमें क्या बनानी पड़ेंगी? अपनी 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमें क्या बोला है कि जो अनीता है शी मूव्ड डिस्टेंस 75 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। दिस इज़ अ नॉर्थ डायरेक्शन एंड हमेशा जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो फिक्स पॉइंट से होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अनीता ने स्टार्टिंग किया है और वो कितना चली है? नॉर्थ की तरफ 75 मीटर्स। शी टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकिंग अबाउट 25 मीटर। नॉर्थ है तो नॉर्थ में लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, तो शी मूव्ड 25 मीटर्स। नाउ टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉकड 80 मीटर्स। अब वो दोबारा से लेफ्ट टर्न करी है और 80 मीटर्स मूव करी है। अब लेफ्ट क्या हो गया? ये। राइट हो गया ये। अब यहाँ से हमारे पास लेफ्ट 75 मीटर ऑलरेडी ये है, +5, ये क्या हो गया मेरे पास? 80 मीटर्स। फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब शी इज स्टैंडिंग ओवर हेयर एंड शी टर्न राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ पे साउथ में है ना, तो साउथ में मेरे पास राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया। तो शी टर्न टूवर्ड्स राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। शी टर्न राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब वो पहुँच गई है यहाँ पे। इन विच डायरेक्शन शी इज़ मूविंग फाइनली? यहाँ पे आ गया, तो हमारा आंसर फिर से क्या हो गया है? साउथ वेस्ट। गाइज हैव यू सीन द कोइंसिडेंस? हमारा फर्स्ट का भी आंसर साउथ वेस्ट, सेकेंड का भी आंसर साउथ वेस्ट एंड थर्ड इज़ अगेन साउथ वेस्ट। सो गाइज इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये सिंपल बेसिक था। आपको जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे मूवमेंट्स लेनी है। लास्ट में उन्होंने राइट की तरफ मुड़ने के लिए बोला था एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो शी टर्न राइट at an angle of 45 degree and so she reached over here and this direction is known as southwest direction, so our answer is southwest. So guys, if you like this video, do share and like and stay tuned for our next video. Thank you.